My name is Ankit Khandelwal, Chartered Accountant by profession and practicing in indirect taxation. So today I have given the topic of GST on e-commerce. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? सो हम लोग सब जानते हैं ई कॉमर्स मतलब सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले ये आता है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, ये सब हम मेरे मन में आता है। तो ई कॉमर्स मतलब क्या होता है? एक्ट के हिसाब से ई कॉमर्स बोलता है, एज पर सेक्शन 244 ऑफ जीएसटी एक्ट, ई कॉमर्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। बेसिकली ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसको इंटरमीडियरी भी बोल सकते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडियरी विच लिंक्स द सप्लायर विद द recipient. Supplier is situated anywhere in India or outside India, and the recipient is situated anywhere in India or outside India. And e-commerce is a digital platform where the supplier of the goods or services supplies their goods or services to the recipient anywhere in country or outside country also. So it is a digital product. Now, what do you mean by e-commerce operator? E-commerce operator is the person who owns, manages, and operates that digital platform or electronic platform for e-commerce. So these are the e-commerce operators. So Flipkarts and Amazon and eBay, these are the e-commerce operators. Now, second, since there are so many types of e-commerce model are there in today's scenario, but I'd like to discuss basically four types of e-commerce, four or five types of e-commerce models today which we are dealing with. First is business to business. What happens in this model? इस मॉडल में क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, नाम लेने से ही समझ में आ रहा है कि वन बिजनेस डील्स विद द अनदर बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में लिंक करता है। बिजनेस टू बिजनेस मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों बिजनेस पर्सन है, इसमें कोई फाइनल कंज्यूमर नहीं है। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा? बिटवीन मैन्युफैक्चरर और बिटवीन होलसेलर होगा, बिटवीन रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर होगा, बिटवीन होलसेलर टू रिटेलर्स होगा, इसमें फाइनल कंज्यूमर नहीं होता। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। सेकंड मॉडल क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर क्या हुआ? कोई पर्सन, कोई बिजनेस पर्सन या कोई बिजनेस क्लास या कोई रिटेलर, होलसेलर, ये अपना सामान बेच रहा है, कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहा है, फाइनल कस्टमर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये किसके थ्रू बेच रहा है? ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहा है। तो सप्लायर जो होगा वो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करेगा डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। दे विल सप्लाई देयर गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर थ्रू विच प्लेटफॉर्म? थ्रू फ्लिपकार्ट, अमेजन, Myntra. These are called the e-commerce platforms through which they are selling the goods. Now, consumer to consumer model is also there. Since here one consumer who have the used goods, who wants to dispose their goods to or sell their goods to another person. So how can they sell their goods? By displaying their goods to the e-commerce portal, e-commerce operators. So like OLX, Quicker, wherein one person dispose of their used goods and assets to the interested person. The consumer must be interested by seeing their products and quality and prices and all. So these are the customer to customer model. Now, fourth is consumer to business model. In this model, the consumer provides a goods or services to the company. Okay, there are so many models are there. One is also, you can say that, inventory model. Since this is not very much in our country, inventory model, what does mean by inventory model? In this type of model, one company or one e-commerce, what they do, they basically purchase the goods and kept in their warehouse and sell the same to their customers. However, in the case of what I have discussed in B2C, in case of Flipkart or Amazon, they only provide the platform to the supplier who directly sell their goods to the consumer. They did not keep the goods with themselves, or they did not buy the product from the actual supplier. However, in case of inventory model, the e-commerce portal, the e-commerce platform, they will basically buy the product from the actual supplier and sell them to the consumers. Like the Alibaba of China, they are basically doing the same thing. Now Flipkart or Amazon, in few cases or some cases, they also doing this thing, but this is not actually more valid in India for our country. Next is registration under GST. Now, in case of e-commerce operator,
there is a compulsory registration is required in case of e-commerce operator. जो भी e-commerce operator होंगे उनको compulsory registration लेना पड़ेगा. किसको? सेक्शन 2410 ऑफ दी जीएसटी एक्ट, जो रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, वो बोलता है एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, बोलता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 52, उनको कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होना होगा. Every ECO is required to obtain GST registration in each state if it has suppliers in different states. अब क्योंकि सप्लायर तो कहीं भी बेच सकते हैं सामान, वो सप्लायर कोई भी स्टेट्स के हो सकते हैं. ई कॉमर्स पोर्टल तो आपका कहीं भी चलेगा, तो वो लोग कहीं से भी बैठ के गुड्स को और सर्विसेज को सप्लाई कर सकते हैं. इन दैट केस एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ताकि वो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाएगा. बेसिकली यही होता है. हालांकि प्रोविजंस ये भी हैं, जो सेक्शन 9 उससे चार्जिंग सेक्शन उसमें बोलता है कि अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, तो आपको कोई आपका खुद का पर्सन या कोई आदमी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि वो लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए. ठीक है, तो अभी आपको ये मान के चलना है कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वेयर इन ईच स्टेट वेयर योर सप्लायर इज लोकेटेड. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर, दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हुज tax at source, means who is not required to collect tax at source under section 52 shall not be required to take registration if their aggregate turnover would not exceed the threshold limit. Okay, this is the criteria for registration of e-commerce operator. Now, what are the criteria for the persons who are supplying goods through e-commerce operator? Section 24(9) of the e-commerce section 24(9) of the CGST Act, what they say? Person who supply goods or services or both through the platform. Which platform? E-commerce platform. Other than those supplies specified under section 9(5). 9(5) I will discuss later on. Now, so through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 is required to mandatorily registered under GST. Section 24(9) बोलता है कि अगर कोई पर्सन सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उन सब पर्सन्स को छोड़कर, उन सब सप्लाईज को छोड़ के जो स्पेसिफाई किया हुआ सेक्शन 9(5) में, तब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तब वो पर्सन रजिस्ट्रेशन लेगा मैंडेटरीली अंडर सेक्शन 24(9). अब बोलता है कि अगर कोई कंपोजिशन डीलर है जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, वो ये सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं कर सकता है. मीन्स कंपोजिशन डीलर इज नॉट लायबल टू सप्लाई द गुड्स और देयर सर्विसेज और बोथ थ्रू the e-commerce portal or e-commerce through e-commerce operators. Earlier these were defined only for the goods. Now later on the amendment came and it also covered services also. Now returns under GST. So since for every person the return is required to be filed, for e-commerce also the GST has mandated a return form which is known as GSTR 8, which is to be filed within 10 days after the end of the month on which the services or goods have been supplied through the e-commerce operators. Now, what does the form GSTR contain? Form GSTR 8 contains the details of outward supplies or goods or services effected through e-commerce operators. Means the suppliers who have supplied the goods through e-commerce operators and affected the goods through e-commerce operators to their customers. So the list, the details of that outward supply of goods or services effected through that e-commerce operators, including the supply of goods returned, goods or services returned. अगर जो गुड्स खरीदते हैं उससे आया तो वो लोग रिटर्न करते हैं, जो गुड्स खरीद रहे हैं वो रिटर्न भी करते हैं. ये बहुत केस में, जैसे आप लोग भी सब करते होंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते होंगे वो लोग भी यही करते होंगे कि कभी कोई गुड्स मंगाया, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो उनको रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स जो होते हैं, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उसके जो रिटर्न्स होते हैं, सेल्स रिटर्न, तो वो सब जीएसटीआर 8 में कवर्ड होते हैं. और हाँ, अमाउंट ऑफ टीसीएस कलेक्टेड, तो टीसीएस कलेक्टेड के डिटेल्स किसके पास में होगा? ईसीओ का, क्योंकि वो टीसीएस कलेक्ट करता है. किसके ऊपर में कलेक्ट करता है? जो वो अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में वो कमीशन चार्ज करता है फ्रॉम द सप्लायर्स. तो उस केसेस में वो टीसीएस कलेक्ट करता है, तो वो भी डिटेल उसको देना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटीआर 8 में. ठीक है, ये तो हो गया आपका जीएसटीआर रिटर्न्स का बात. अब सिंस
नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन को आपको पता है कि जीएसटीआर 9C फिलअप करना पड़ता, 9 भरना पड़ता फॉर एनुअल रिटर्न. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न in which in form GSTR 9B, and the due date is same for normal person and the e-commerce operator person, that is within 31st December of the following year in which the tax was collected. Okay, so the annual return is to be filed in GSTR 9B and the GST returns has to be filed in GSTR 8. Now मैंने पहले बोला था एक्सेप्ट 9.5. अब ये 9.5 है क्या? 9.5 बेसिकली लेवी सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, जो कि सिर्फ सर्विसेज को कवर्ड करता है. सेक्शन 9.5 बेसिकली कवर्ड दी स्पेसिफाइड सर्विसेज ओनली which has been notified by the GST Council through the notifications. Basically, in this there are only 3 services have been covered in this in the notification and under section 9.5, and in this case the tax is to be paid by the e-commerce operators on the behalf of the supplier of services, and the e-commerce operator is supposed to be as the person supplier liable to pay tax in relation to supply of such services. नाउ अब हम लोग चलते हैं कि वो क्या सर्विसेज है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा. जैसे अभी हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सब का बात कर रहे थे पहले. फ्लिपकार्ट, अमेजन के केस में क्या होता है, अगर कोई सप्लायर गुड सप्लाई करता है कोई रिसिपिएंट को, तो जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी सप्लायर की आती है. सप्लायर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स. ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट द पर्सन लायबल टू पे टैक्स. ई कॉमर्स ऑपरेटर इज ओनली द प्लेटफॉर्म वेयर इन द सप्लायर सप्लाइज देयर गुड्स टू द रिसिपिएंट. अब सेक्शन 9.5 में क्या बोलता है कि सेक्शन 9.5 में बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन विच क्राइटेरियाज, इन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. कौन से सप्लायर ऑफ सर्विसेज? Only 3 conditions have been specified. Now, अब 3 conditions क्या क्या है? Transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, etc. अब इसमें क्या बोलता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें आपका हो सकता है ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है. अब सप्लायर कौन होगा? सप्लायर एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है. वो आपका ड्राइवर जो गाड़ी लेकर के आता है आपको पिक करने के लिए ओला उबर में, एक्चुअल में तो वही सप्लायर है जो ड्राइवर है, या उसका मालिक जो होगा वो सप्लायर होगा. तो सप्लायर कोई भी पर्सन हो सकता है, वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट, ही इज द सप्लायर. ना पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, क्योंकि ओला उबर तो बहुत सारे लोग चलाते हैं. अब गवर्नमेंट ने इसको क्यों लिखा है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रैक एवरी ड्राइवर और एवरी पर्सन, एवरी स्मॉल सच पर्सन to get registered under GST and to file returns and all. So government has fixed one criteria that it is better to collect taxes from the e-commerce operator. These basically these services, these specified services are basically called the aggregators, where any person supplies their goods for the use of for use, and they supply the services to the final consumers. ना तो ये ओला उबर क्या करेगा? कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड हो, कोई भी पर्सन मतलब जो टैक्सी ड्राइवर हो गया वो सप्लायर हो गया. रिसिपेंट कौन हो गया? रिसिपेंट हम लोग हो गए. हम लोग कोई भी गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो हम लोग रिसिपेंट हो गए. लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर ही यहाँ पर माना जाएगा, मतलब ओला उबर ही माना जाएगा यहाँ पे कि ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स. जब आप भी ओला उबर जाते होंगे तो उसका बिल जब आता होगा आप देखते होंगे कि उसमें ओला और उबर लिखा है, उस आदमी का नाम नहीं लिखा होता है. तो हेयर इन दिस केस ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स. नाउ सेकंड केस क्या है? पहला तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय मोटर कैब वगैरह हो गया. सेकंड हो गया एकोमोडेशन इन होटल्स. बहुत सारे होटल्स हैं मींस फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस. गेस्ट हाउस हो गए, क्लब्स हो गए, कैंप साइट्स हो गए, कमर्शियल प्लेसेस हो गए, जो रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो एनी पर्सन, सप्लायर कौन हो सकता है? एनी पर्सन एक्सेप्ट दोज लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1). मींस if any person whose turnover is less than the specified turnover limit under section 22(1), those person means unregistered persons is supplying the goods to the service recipient, and the person liable to pay GST is whom? ई कॉमर्स ऑपरेटर. मीन्स आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, गो आईबीबो एमएमटी. इसमें क्या करते हैं? कोई भी सप्लायर जो होते हैं, मतलब होटल, फॉर स्मॉल होटल्स एंड फॉर मे बी एनी होटल, उसमें क्या होता है? वो लोग अपना डिटेल डालते हैं कि ये मेरा होटल है, ये रूम चार्जेस वगैरह है, एंड वी आर द रिसिपिएंट. हम लोग क्या देखते हैं? अच्छा ये होटल का इतना रेट है, वी बुक दैट होटल थ्रू एमएमटी एंड गो आईबीबो, एंड नाउ वी
pay to whom? We pay to MMT, and the MMT is the person liable to pay GST on the bookings done through that MMT portal. So the small hotels and all, अगर वो कोई भी छोटा पर्सन है, अगर वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तब तो वो एमएमटी में रजिस्ट्रेशन करेगा और एमएमटी उसमें उसको एमएमटी इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स. हाउएवर प्लीज नोट दैट ये जो सेक्शन 9(5) में आपको बता रहा हूँ फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, दीज आर दी पर्सन, सिर्फ इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर की लाइबिलिटी होती है जीएसटी पे करने की. सो टीसीएस वुड नॉट बी डिडक्टेड इन दीज कंडीशंस बिकॉज यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लाइबल है टैक्स पे करने के लिए. अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई होता है, जैसे कि इसमें सप्लायर था पे फ्लिपकार्ट में, क्योंकि सप्लायर था वो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरे को सप्लाई कर रहा था, तो मैं वहां पे सिर्फ प्लेटफॉर्म था, मतलब मैं कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वहां पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू वो सप्लाई कर रहा था. तो उस केस में क्या हो रहा था, ई कॉमर्स ऑपरेटर कमीशन ले रहा था और उसके बदले में वो टीसीएस डिडक्ट कर रहा था. यहाँ क्या हो रहा है सेक्शन 9(5) में, आई एम द पर्सन मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अंडरस्टूड टू बी द सप्लायर हु इज लायबल टू पे टैक्स. सो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीसीएस. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने ऊपर तो टीसीएस काटेगा नहीं. That's why TCS liability is not required to be deducted in the case of section, in the case of the ECO falls under the section 9(5). ठीक है. सेकंड आपको बता दिया प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन बाय होटल्स एंड ऑल. थर्ड इज हाउसकीपिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एटसेट्रा. अगर ऐसे कोई सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है, कोई मैंने कोई भी हो सकता है, मिस्त्री है घर में, कोई मैकेनिक है, अगर वो आएगा तो वो रजिस्ट्रेशन तो लेगा नहीं हर छोटा छोटा चीज का. लेकिन अगर बोलता है कि अगर उनका भी रजिस्ट्रेशन 22(1) से एक्सीड करता है, मतलब 10 लाख से ऊपर या 20 लाख या 40 लाख जो भी क्राइटेरियाज है फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर वो रजिस्ट्रेशन से एक्सीड कर जाता है उनका एग्रीगेट टर्नओवर, देन ही इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन और उस केसेस में उनका टीसीएस कटेगा. लेकिन क्योंकि एनी पर्सन बोलता है एक्सेप्ट दोज लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर 22(1), उस केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स होगा. हाउस कीपिंग अगर सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है, उसका क्या एग्जाम्पल है, अर्बन क्लैप के थ्रू वी बुक द प्लम्बिंग सर्विसेज, कारपेंटिंग सर्विसेज, एसी रिपेयरिंग सर्विसेज एंड ऑल. सो this urban clap is a person liable to pay GST. So however this urban clap or means this housekeeping services has been inserted later on through notification number 23/2017, central tax rate dated 22/8/2017. Earlier they specified services, two specified services what I have discussed before. One is transportation of passengers and accommodation services. They have been notified through notification number 17/2017 dated 28/6 means 28 June 2017, and the housekeeping services has been inserted wide notification number 23/2017 dated 22 August 2017. Now next slide. Now since we have discussed section 9(5), now collection of tax at source. Now what do you mean by TCS collected? Means TCS which is falls under section 52 of GST Act. Now as we know that, as I have already discussed that every e-commerce operator except those falling under section 9(5), every e-commerce operator and but not being an agent shall collect TCS. हर e-commerce operator TCS collect करेगा. किस रेट पे? Not exceeding 1%, means 0.5% CGST and 0.5% SGST on the net value of taxable supplies. किसमें कलेक्ट करेगा? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज. अब इसका मतलब क्या होता है? आई विल कम टू इट. मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर्स वेयर द कंसिडरेशन विद रेस्पेक्ट टू सच सप्लाईज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर. सबसे मेन चीज इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर विल कलेक्ट द टैक्स, मीन्स every e-commerce operator shall collect TCS at the rate of 1% on net value of taxable supplies made through it e-commerce operator by the other suppliers where consideration with respect to such supplies is collected by the e-commerce operators. अब जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं कुछ भी, लेकिन सप्लाई तो हम लोग कोई और करता है, कोई फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू अगर हम लोग कुछ भी गुड्स या सर्विसेज कुछ अगर खरीदते हैं तब, लेकिन हम लोग पेमेंट किसको करते हैं? फ्लिपकार्ट और अमेजन को, एंड देन दे विल गिव द वैल्यू ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज टू the actual supplier. So in this case the consideration with respect to the supplies has been received by the collected by the e-commerce operator. अब net value of taxable supplies में 1% collect करना है. What do you mean by net value of taxable supplies? Explanation to section 52(1) has defined the net value of taxable supplies. Net value of taxable supplies means
aggregate value of taxable supplies of goods and services other than those specified in 9(5). 9(5) को हटा करके जो भी aggregate value of supplies of goods or services होगा made during any month by all the taxable persons, registered taxable person through the operator, सारे टैक्सेबल पर्सन को मिला करके हम 1 मंथ में जितना भी गुड्स और सर्विसेज, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करेंगे थ्रू माई प्लेटफॉर्म, माई मतलब थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म, बाय डिडक्टिंग या रिड्यूसिंग क्या चीज को, जो मेरा रिटर्न आया गुड्स। अब मैंने कोई सामान मेरे थ्रू अगर बिका है तो वो रिटर्न भी कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, तो उसको डिडक्ट करने के बाद, और अगर कोई सेक्शन 9(5) का सप्लाई है उसको डिडक्ट करने के बाद जो सप्लाई बचेगा टैक्सेबल सप्लाई, वो मेरा होगा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें टीसीएस कटेगा 0.5% एंड 0.5%। ठीक है, मतलब 1% टीसीएस कटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी किसमें नहीं होगी, किसमें बोला जाएगा कि टीसीएस नहीं लगेगा। पहला, फर्स्ट इज जीएसटी where GST is payable under reverse charge on specified services under section 9(5). अब 9(5) में क्योंकि ECO is the person liable to pay tax, so TCS provisions does not apply in the specified services where section 9(5) of the GST Act applies. Okay. Second is the TCS provision will also not apply in the case of exempt supply, means if any person supplies the goods through electronic commerce platform and that supply is basically an exempt supply, in that case also TCS will not be applicable. Now in case of import or export of goods also TCS provisions will not apply, means the TCS provisions will apply only in the territory of India. Okay. Now fourth is अगर आप कोई अपना खुद का सामान बेचते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, देन देयर इज ऑल्सो नो टीसीएस। अगर कोई ऐप बनाता है, मान लीजिए कोई एमआई अपना ऐप बनाया या कोई अपना वेबसाइट बनाया है और उसके थ्रू वो अपना एमआई का प्रोडक्ट, रेडमी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो अपने ऐप के प्रोडक्ट में तो वो टीसीएस काटेगा नहीं। सो इन दिस केस ऑल्सो टीसीएस प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई। नाउ नेक्स्ट इज लेवी एंड कलेक्शन। E-commerce operators generally involve how many parties? Buyer, seller, and e-commerce operator. Except few conditions, only 2 parties were there. But basically, there were 3 parties: buyer, seller, and e-commerce operators. Now, what should be the transactions between that buyer, that seller, and operator? First of all, buyer and seller is means linked. How they are linked? They are linked by supply of goods or services, means buyer is buying the goods from the electronic commerce portal and the actual seller is supplying the goods to the that buyer. Now there is also a link between seller and e-commerce operator. Now how there is a link? E-commerce operator basically what they do is they provide the marketplace for that actual supplier, means big marketplace. ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, जैसे अगर कोई सेलर किसी का दुकान है, कोई छोटा दुकान है, वो क्या होता है उस एरिया में है, वो सब एक एरिया में फिक्स प्लेस पे होता है, तो क्या उसका ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते हैं और उनका रिच भी बहुत कम होता है। नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर, सिंस दे आर इंटरनेट बेस्ड एंड दे आर डिजिटली बेस्ड, इस केस में क्या होता है, दे आर प्रोवाइडिंग अ ह्यूज मार्केट प्लेस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, एनी प्लेस इन द कंट्री। तो आप अपने गुड्स को, द सेलर हैज द फुल इंडिपेंडेंस टू सेल देयर गुड्स टू एनी पर्सन इन द कंट्री एनीवेयर। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। अब इन ट्रांजेक्शन से क्या होता है, मतलब क्या कंसिडरेशन मिलता है या क्या फायदा होता है? लेवी। नाउ अब बोलता है जीएसटी शैल बी लेवीड ऑन द सेलर supplier who supplied their goods or services through that e-commerce operator portal to the buyer, except in case of services under section 9(5), क्योंकि वो उसमें e-commerce operator खुद लायबल होता है। बट सेलर और बायर के बीच में अगर हम लिंक है तो उस केस में हेयर इन जनरल केसेस जहाँ पे 9(5) नहीं फॉल कर रहा है, वहाँ पे हर केस में ही सेलर की लाइबिलिटी होती है जीएसटी पेमेंट करने की। तो सेलर जो भी सप्लाई करता है इंटायर गुड्स और सर्विसेज, जो भी सप्लाई करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर को, तो वो जीएसटी पेमेंट करेगा। नाउ सेलर और ई कॉमर्स के बीच में क्या होता है, सिंस ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड्स द मार्केट प्लेस फॉर सप्लाइंग द गुड्स
to the seller. So e-commerce operator receives the commission from the seller on behalf of the supplier of goods to the customers in various part of the country and entire world. तो जीएसटी उस कमीशन के ऊपर में चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज करता है फ्रॉम द सेलर. ठीक है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का बेसिक एक इंट्रोडक्शन था. सो विच आई हैव कंप्लीटेड. आई अगेन थैंक casansar.com for providing me such opportunity and CA Vivek Khurana sir providing me the opportunity to speak on a very important topic which is GST on e-commerce operator. So I'd like to conclude my topic. If if any participant has any problem, they can either mail me or they can comment the questions, their queries, so that I can answer that query and I can solve their queries. I can also you can also contact me through my number and my email ID given in the PowerPoint presentation. And if you want to speak me to on any topic other than this e-commerce operator topic, I'll be happy to have my views, my knowledge. I'm happy to view my to share my knowledge and all to you, to all participants on any topic of GST. Thanks to you all. Thanks, CS Ansar, for providing me the opportunity.